हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। A state legislature. There is a most important topic here. This is a composition of the state legislature. What do you mean by composition of the state legislatures here? In a most of state, the legislature is consist of the governor and legislature is the assembly. Means Vidhan Sabha. This means that this state has been uniscamular legislatures in a few states. There are two houses of the legislatures, namely is the legislature assembly means Vidhan Sabha and legislative council means Vidhan Parishad. Beside there, a governor, where are two house legislatures is known as the bicameral. There is a bicameral. There is two houses of the governor, and the five states has the bicameral is a legislature. Their legislative assembly is known as the lower house of popular house. The legislature is a counciling is known as the upper house, just as a Lok Sabha has been to made a powerful at the union level. The legislature assembly has been to the made a powerful body in a state. The most point important coming here, the legislative assembly Vidhan Sabha. There is a legislative assembly is a Vidhan Sabha here. There is a legislative is assembly Vidhan Sabha is a, every state is a represent the people of the state. The member of Vidhan Sabha are directly elected by the people on the basis of the universal adult franchise, and they are directly elected by the all adult citizens are registered as the voter in their state. All men and women who are the 80 years of the age and above are the eligible to be are included in the voter list. They vote to be elected to member of state assembly. Members are elected from a territorial constituency. Every state is divided into the many single member constituency as the number of member to be elected. As in case of the Lok Sabha, contained member of seat are reserved for the scheduled caste, and is a some state is a scheduled tribe also. This depend on population of this weaker section in the state. In order to become a member of Vidhan Sabha, as a person must be citizen of India, have attained to the age of 35 years, and he his name must be a voter list, and must not hold any office of profit, and should not be a government servant. The number of Vidhan Sabha member cannot be more than 500 and not less than 60. However, every small state have been allowed to have a lesser number of members. Thus, the Goa has only 40 members in its assembly. Uttar Pradesh is a big state even after the creation of Uttaranchal from this state is a 2002 has a 430 seat in the assembly. The governor of state has the power to nominate one member of the Anglo-Indians community. In this community is not be acquired or represented in the house. As in the case of the Lok Sabha, some seats are reserved from two members of the scheduled caste and scheduled tribes. The tenure of the Vidhan Sabha is a 5 year, but the governors can be dissolved before the composition of its term on the advice of chief minister. It may be dissolved by there is a precedent in a case of constitutionally emergency is a proclaim under Article 356 of the Constitution. In case of proclamations of national emergency under Article 352, the Parliament can be extended the term of the legislative assemblies for the period of not be exceeding 1 year at a time. The next point here, our presiding officer, the speaker. The member of Vidhan Sabha elected there is a presiding officer. The presiding officer is known as the speaker. The speaker presides over to meeting of the house and conduct it is a proceedings. He maintain order in the house, allow to the member to ask question and speak. He put bill and other measure to be vote and announcement and the result of voting. The speaker does not be ordinary vote at the time of voting. However, he may be exercise a casting vote in case of the tie. The deputy speaker presides over to meeting during to the absence of the speaker. He is also elected by the assembly from amongst it is a member. A tie mean that equal
number of the member has been voted to the favor of against a bill or its solutions to be break is a tile casting vote to the exercise by the presiding officer of the legislative assembly। यहाँ पर जैसे दोस्तों हमारे समक्ष आया है राज्य विधानमंडल की संरचना। देखिए राज्य विधानमंडल की संरचना किस प्रकार बनाई गई है ये भी जानना अति रोचक रहेगा। ये बात बहुत ही साधारण है। अगर देखा जाए तो कहते हैं अधिकतर राज्य के विधानमंडल में राज्यपाल तथा विधानसभा होती है। इसका अर्थ यह है कि राज्य में एक सदनीय विधायक है और कई राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जहाँ दो सदन होते हैं उसे हम द्विसदनीय विधायक कहते हैं, यानी इसे द्विसदनीय विधायक भी कहा जाता है। 5 राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। देखिए 5 ही राज्य में जो है द्विसदनीय विधानमंडल है। विधानसभा का निचला सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, यानी निचले सदन को हम जो है लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। विधान परिषद को ऊपरी सदन भी कहते हैं। जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर लोकसभा को अनंत शक्तिशाली बनाया गया है उसी प्रकार राज्य में विधानसभा को शक्तिशाली बनाया गया है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जिस प्रकार हमें सेंटर में गवर्नमेंट देखने को मिलती है वैसे ही हमें स्टेट में भी इसी प्रकार के गवर्नमेंट देखने को मिलती है। कई मानने में दोनों काफ़ी सेम ही दिखते हैं और उनका कार्य फंक्शन सारे जो होते हैं सेम ही होता है। सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि वो कहते हैं कि राष्ट्र लेवल पे होता है यानी नेशन पे होता है और ये जो होता है स्टेट लेवल पे होता है, लेकिन सारी प्रक्रिया सेम ही होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये दोनों जो है शक्तिशाली होते हैं अपने अपने क्षेत्र में। उसके पश्चात हमारे समक्ष विधानसभा। देखिए प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है और यह राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। विधानसभा के सदस्यों सार्वभौमिक व्यास मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उनका जो है निर्वाचन राज्य में पंजीकृत सभी व्यास नागरिक मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होती है। कहते हैं 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के सभी स्त्री और पुरुष मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य होते हैं और वह राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करते हैं। सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर निर्वाचन किए जाते हैं और प्रत्येक राज्य को उतने ही एक स्तरीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है जिसे सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा की तरह यहाँ भी कुछ स्थान अनुसूचित जातियों के लिए तथा कुछ स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। यह उस राज्य में उन वर्गों की जनसंख्या पर निर्भर करता है। यानी देखा जाए तो विधानसभा में भी जनजाति और अन्य पिछड़े जातियों के लिए भी अनुसूचित जनजातियों के लिए भी जो है सीट आरक्षण किया गया है, जो कि बहुत काफ़ी उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान बनाया गया है। यदि बात यहाँ देखा जाए कि राज्य विधानसभा सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यता होना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो यही है होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो और वह 25 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो। उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और किसी लाभ के पद या अथवा सरकारी पद पर कार्यरत न हो। तो ये सारी योग्यताएं किसी भी सदस्य को होना चाहिए जो राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए। विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है 500 से अधिक तथा 60 से कम नहीं हो सकती है, किंतु बहुत छोटे राज्यों को न्यूनतम संख्या से भी कम संख्या रखने की स्वीकृति दी गई है। जैसे गोवा की विधानसभा में केवल 40 सदस्य ही हैं और 2002 में उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में से अलग कर देने के बाद भी यह एक बहुत ही बड़ा राज्य है, इसलिए इसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या अब भी 403 ही है। यदि किसी राज्य की विधानसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व न हो तो राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह समुदाय का एक सदस्य मनोनीत कर सके। लोकसभा की तरह यहाँ भी कुछ स्थान जो है सुनिश्चित जनजाति और जनजातियों के लिए आरक्षित है, यानी देखा जाए अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अवधि पूरा होने से पहले भी इसको भंग कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति किसी राज्य में सर्वसाधारण संकट की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर दे तो राष्ट्रपति विधानसभा को भंग कर सकता है और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर संसद विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष अध्यक्ष यानी सभापति। कहते हैं विधानसभा के सदस्य अपनी सभापति निर्वाचित करते हैं जिसे अध्यक्ष कहा जाता है। अध्यक्ष सदन के बैठकों का जो है सभापति करता है एवं इसकी कार्यवाही को भी चलाता है। वह सदन का अनुशासन बनाया रखता है
तथा सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बोलने की स्वीकृति प्रदान भी करता है। वह विधायकों तथा अन्य प्रस्तावों पर मतदान करता है तथा जो है परिणाम घोषित भी करता है, किंतु मत समान होने की स्थिति में वह अपना निर्णय मत दे सकता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर परिणाम बराबर हो जाता है तो वो अपना मत दे के जो है किसी एक पार्टी को विजय बना सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठकों की सभापति करता है और उपाध्यक्ष भी सदस्यों द्वारा अपने में से ही किसी एक को चुनता है। यदि किसी विधायक अथवा प्रस्ताव के पक्ष और विरोध में मत सामान्य हो तो उसे टाई कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में टाई तोड़ने के लिए अथवा गतिरोध समाप्त करने के लिए अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। इससे कोई भी व्यक्ति जो है अपना प्रशासन चला सकता है।